Good morning, friends. Today we are going to start with problem number 60. Just refer problem number 60 in your question sheet. Now what they have given? A doctor, after retiring from government service, started private practice on 1st April 2001 with 20,000 of his own capital, and 30,000 borrowed at an interest of 15% per annum on the security of his life policies. His account for the year were kept on a cash basis, and the following is his summarized cash account. Now the thing is, here they have given you the cash book of a doctor. You are aware with how the doctor practice, in the sense that in the case of a doctor there will not be a trading account, because he is not a trader but he provides services, and that's the reason in the case of service provider also you can prepare an income and expenditure account and a balance sheet. So here they have given a cash book of a doctor, and what they have asked us to do is, if you refer a last paragraph they have given, you are required to prepare his capital account and income and expenditure account for the year ended 31st March 2002 and the balance sheet as on that date. 1/3 of the motor car expense may be treated as applicable to the private use of a car, and 3,000 of the wages and salaries are in respect of domestic servant. The stock of machines they have given, it should be the stock of medicines in hand on 31st March 2002 was valued at 9,500. Now they have given a detail about a doctor, detail of financial transaction of a doctor they have given. Now doctor has started a business with 20,000 of his own. Doctor has started his own practice with 20,000 of his own, and he has taken a loan at the rate of 15%. Now if the doctor has started his practice with a capital of rupees 20,000, now the general entry will be cash account debit to doctor's capital account. Doctor's capital account. How much? 20,000. And he has also taken a loan of rupees 30,000. That entry will be cash account debit to 15% bank loan account. How much loan he has taken? 30,000. Now this is two things at the start he has done. He has introduced 20,000 as his capital and borrowed 30,000 rupees from a banker, and he has started his own practice. Now cash has been debited in both the cases. So in the cash book you can see that on the receipt side you will find that there is a own capital of 20,000 and there is a loan, that is 15% loan of 30,000. Starting itself they have given. So that is what he has done. Now we'll read the cash book and then we'll start with the problem. Now what they have given: own capital 20,000, loan in bracket you can write there 15%, 30,000, prescription fees 52,500, gifts from patients, visiting fees, fees from lectures, and pension received. On the payment side you have medicine purchase, surgical equipment, motor car expenses, wages and salaries, rent of clinic, general charges, household expenses, household furniture, expenses on daughter's marriage, interest on loan, balance at bank, and cash in hand. So this is a cash book detail they have given. Now on the receipt side you can see that वहाँ पे तीन तरह की चीजें आएंगी on the receipt side in case of a service provider or doctor. There will be either a personal receipt, there will be either a professional receipt, or there will be either a capital receipt. बराबर? जो रिसीप्ट साइड है उसमें से जो भी आइटम्स रहेंगे या तो वो पर्सनल रहेंगे, पर्सनल रिसीप्ट, या तो वो रहेंगे प्रोफेशनल रिसीप्ट, या तो वो रहेंगे कैपिटल रिसीप्ट.
सो डेबिट साइड रिसीव के आइटम कहाँ आपके पास आ सकते? इफ इट इज अ पर्सनल रिसीप्ट then it will come on credit side of capital account. If it is a professional receipt, it will come on income side of a professional. If it is a capital receipt, it will come on the liability side. Receipt credits में आएंगे, कहाँ आ सकते हैं? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, इनकम अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड, और बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड. इट विल बी आइदर अ पर्सनल रिसीप्ट, प्रोफेशनल रिसीप्ट और अ कैपिटल रिसीप्ट. क्रेडिट साइड जो आइटम दिए हुए सेम थिंग, इट विल बी आइदर अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर. इफ इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, it will come on the capital side debit, capital account debit. If it is a professional expenditure, it will come income and expenditure debit side expenditure. और बैलेंस शीट के अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो यहाँ पे आएगा. पर्सनल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा. प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट होगा. और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा. तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? अगर वो रिसिप्ट का आइटम है तो प्रोफेशनल रिसिप्ट अगर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड, पर्सनल रिसिप्ट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और कैपिटल रिसिप्ट है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आएगा. और अगर पेमेंट साइड दिया हुआ है तो इट विल बी अ पर्सनल एक्सपेंडिचर. अगर वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा. प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आएगा एक्सपेंडिचर साइड, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा. बराबर. तो वन बाय वन वी विल रीड दिस. दे हैव गिवन own capital, loan, prescription fees, gift, visiting fees, fees from lectures, pension receipt. Now own capital is related with personal receipt, तो वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. लोन is related with business, और you can call it as a capital receipt. बराबर. own capital is personal receipt, तो पर्सनल रिसीप्ट का आ रहा है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. एंट्री भी है पास, कैश अकाउंट डेबिट टू डॉक्टर्स कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा. उसके बाद लोन क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है बिजनेस के लिए, इट इज अ कैपिटल रिसीप्ट. कैपिटल रिसीप्ट का आएगा लायबिलिटीज में. देन देयर इज अ प्रिस्क्रिप्शन फी, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट. गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट इज रिसीविंग कैश, तो दैट नथिंग मीन्स अगर कोई पेशेंट से गिफ्ट लेता है तो इसका सिंपल मीनिंग है आपने आपकी फीस नहीं ली बल्कि उनसे गिफ्ट लिया. इट इज वन एंड द सेम. तो इट इज योर प्रिस्क्रिप्शन फी, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट, विजिटिंग फीस, फीस फ्रॉम लेक्चर्स. ये चारों भी क्या हो गए? आपके प्रोफेशनल रिसीप्ट. और प्रोफेशनल रिसीप्ट कहाँ पे आएंगे? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड. उसके बाद है आपका पेंशन रिसीप्ट. पेंशन रिसीप्ट पर्सनल है आपका. आप गवर्नमेंट सर्विस में थे तो वहां से आपको पेंशन आया, वो आपके प्रोफेशन से, अभी जो प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है, वो पिछले प्रोफेशन से, तो वो आपका पर्सनल हुआ. तो वो पेंशन रिसीप्ट क्या हुआ? आपका पर्सनल रिसीप्ट. पर्सनल रिसीप्ट का आएगा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में. उसी तरह पेमेंट साइड अगर आप देखें तो यू हैव मेडिसिन परचेज. मेडिसिन परचेज आपने किया है, बराबर. कंज्यूम कितना किया है वो आपको मालूम करना पड़ेगा. मेडिसिन परचेज आपने यहाँ पे किया है, और मेडिसिन कितने का परचेज किया है? 24,500. और अगर आप यहाँ पे जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है उसके नीचे जो पैराग्राफ दिया हुआ है लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ है देखिए. द स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड ऑन 31 मार्च 2002 वाज वैल्यूड एट 9,500. यानी आपने 24,500 की मेडिसिन परचेज की, लेकिन 9,500 रुपए की मेडिसिन जो है वो आपके पास इन स्टॉक है, यानी बैलेंस है. तो कंज्यूम कितनी की आपने? 24,500 माइनस 9,500, बैलेंस विल बी ₹15,000. तो 15,000 की मेडिसिन कंज्यूम की, इट इज अ प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड आएगा. और 9,500 की जो मेडिसिन इन हैंड है दैट इज योर एसेट, वो एसेट साइड आएगा. फाइन. उसके अलावा सर्जिकल इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स में आएगा. मोटर कार आपका एसेट्स है. मोटर कार एक्सपेंसेस. अब यहाँ पे मोटर कार एक्सपेंसेस के बारे में क्या डिटेल दिया हुआ है देखिए. 1/3 of the motor car expenses may be treated as an applicable to private use. यानी मोटर कार एक्सपेंसेस
पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है, प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी यूज हो रहा है। पर्सनल पर्पस के लिए कितना यूज हो रहा है, 1/3। तो मोटर कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस, कितना एक्सपेंसेस है मोटर कार, 12,000। 12,000 का 1/3 विल बी 4,000। 4,000 इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, वो यहाँ पे आएंगे। और 8,000 रुपीज जो है वो आपके प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर है, वो कहाँ पे आएंगे, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन क्या दी है देखिए, एंड ₹3,000 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज आर इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी 10,500 रुपए में से 3,000 रुपए आपने आपके घर के सर्वेंट को दिए हैं, यानी आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, वो कहाँ आएगा, आपके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। एंड बैलेंस 7,500 इस क्लिनिक से रिलेटेड आपने सैलरी दी है, वेजेस दिए, वो आपके प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर हो गया, वो कहाँ आएगा, आपके एक्सपेंडिचर साइड। उसके बाद हो गया रेंट ऑफ द क्लिनिक इज अ प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड आएगा। जनरल चार्जेस भी आपके प्रोफेशनल रिलेटेड एक्सपेंडिचर है। हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड फर्नीचर, एक्सपेंसेस ऑन डॉटर्स मैरिज, ये सब हो गए आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर। पर्सनल एक्सपेंडिचर का आएंगे, आपके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने जो 30,000 का लोन 15% से लिया था, तो 30,000 पे 15% कितना होगा, 4,500। और यहाँ पे उन्होंने पेमेंट कितना किया है, इंटरेस्ट, वो भी 4,500। दैट मीन्स देयर इज नो आउटस्टैंडिंग अमाउंट और पेएबल अमाउंट, एंटायर इंटरेस्ट यू हैव पेड। आपने लोन आपके प्रोफेशन पर्पस के लिए लिया था, तो यहाँ पे 4,500 रुपए जो इंटरेस्ट आपने पे किया है वो भी प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर होगा, वो भी आपके एक्सपेंडिचर साइड आएगा। उसके बाद बैलेंस एट बैंक और कैश इन हैंड, ये भी आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में, दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। सो वी विल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पोस्ट ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में जो जो दिया हुआ है पहले आप वो ले लोगे। उन्होंने सबसे पहले क्या दिया है, 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस में बी ट्रीटेड एज एप्लीकेबल टू प्राइवेट यूज। तो मोटर कार एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंडिचर 1/3 यहाँ पे ले लेते हैं पहले, टू मोटर कार एक्सपेंसेस। मोटर कार एक्सपेंसेस कितना है, 1/3। 1/3 कितना, विच अमाउंट, मोटर कार एक्सपेंसेस आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में कितना दिया हुआ है, 12,000। तो 1/3 ऑफ 12,000 विल बी 4,000, बराबर। और रिमेनिंग इज योर रिलेटेड विथ प्रोफेशन, तो 2/3 टू मोटर कार एक्सपेंसेस। मोटर कार एक्सपेंसेस कितना आएगा इधर, 2/3। 2/3 ऑफ 12,000, 2/3 ऑफ 12,000 विल बी हाउ मच, विल बी 8,000। तो यहाँ पे 1/3 ऑफ 12,000, 4,000 एंड हियर 8,000। उसके बाद वो क्या बोल रहा है आपको, वेजेस एंड सैलरीज डोमेस्टिक सर्वेंट, यानी पर्सनल एक्सपेंडिचर, टू वेजेस एंड सैलरीज कितना है, 3,000। और आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में वेजेस एंड सैलरीज कितना दिया हुआ है देखिए, 10,500। 10,500 दे हैव गिवन, उसमें से 3,000 आपके घर के लिए, तो बाकी 7,500 आपके प्रोफेशन के लिए। टू वेजेस एंड सैलरीज हाउ मच, 7,500। टोटल इज 10,500, बराबर। उसके बाद वो क्या बोल रहा है आपको देखिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन इन हैंड ऑन 31st March 2002 was valued at 9,500। मेडिसिन का स्टॉक, स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, 9,500। आपने मेडिसिन कितने का परचेज किया था देखिए, मेडिसिन आपने कितने का परचेज किया था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में 24,500 का मेडिसिन आपने परचेज किया था। 24,500 का अगर आपने मेडिसिन परचेज किया है और उसमें से 9,500 का मेडिसिन आपके पास इन हैंड है, तो बाकी का क्या हुआ है, कंज्यूम। तो यहाँ पे टू मेडिसिन कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम, मेडिसिन परचेस,
मेडिसिन परचेज कितना है देखिए, मेडिसिन परचेज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में 24,500, उसमें से स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2002 कितना स्टॉक आपके पास इन हैंड है, 9,500। तो मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ, 15,000 का मेडिसिन आपने कंज्यूम किया है। तो यहाँ पे आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो जो चीजें दी हुई है उसको आपने ले लिया। अभी देखिए मेडिसिन परचेज 24,500 है, उसमें से 9,500 रुपए आपने एसेट में लिए और बाकी 15,000 रुपए आपने एक्सपेंडिचर, दोनों डेबिट, बराबर। नाउ कम टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू पोस्ट ऑल द आइटम। पहले आपका ओन कैपिटल दैट इज कैश आपने लाया बिजनेस के अंदर, तो ये कैश बुक आपको दी हुई है, डेबिट साइड ओन कैपिटल, तो दैट विल बी बाय कैश। ये जनरल एंट्री में ले लो, बाय कैश कितना कैपिटल लाया आपने, 20,000, बराबर। उसके बाद 15% लोन आपने लिया है, दैट इज अ लायबिलिटी, 15% लोन, हाउ मच, 30,000, ठीक है। ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, 20,000 रुपीज आपके पर्सनल थे, 30,000 रुपए आपने जो है वो लोन लिया है। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन फीस इज अ इनकम, बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस, बाय प्रिस्क्रिप्शन फीस 52,500। देन गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स कितने हैं, 13,500। देन यू हैव विजिटिंग फीस, गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट इज इन कैश बिकॉज इट हैज बीन गिवन इन कैश बुक, तो यू हैव रिसीव अ कैश। तो इसका सिंपल मीनिंग है आपने पेशेंट से फीस नहीं ली बल्कि गिफ्ट ली, तो इट इज वन एंड द सेम, इट इज योर प्रोफेशनल रिसीप्ट। देन देयर इज विजिटिंग फीस 25,000, visiting fees 25,000. Then you have fees from lectures, how much, 2,400. Fees from lectures 2,400. आपका लेक्चर देने गए वहां से 2,400 रुपए आपको मिले। पेंशन रिसीव इज योर पर्सनल रिसीव, by pension received, how much, पेंशन कितना मिला आपको, 30,000। $30,000 का आपको पेंशन मिला है। तो डेबिट आपने रिसिप्ट साइड कंप्लीट कर लिया। रिसिप्ट इज योर आइदर एन इनकम, either a capital credit or liabilities. Now come to expenditure side. अब expenditure side में medicine purchase you have already taken. Then there is a surgical equipment. Surgical equipment में depreciation का कोई information नहीं है दिया, तो as it is we will take surgical equipment is a capital expenditure asset. Surgical equipment, surgical equipment कितने का है, 25,000। उसके बाद आता है आपका मोटर कार इज एन एसेट, उस पर भी डेप्रिसिएशन कुछ दिया हुआ नहीं है। अगर मोटर कार के बारे में डेप्रिसिएशन की कोई इंफॉर्मेशन रहती थी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, अगर बोला जाता था कि मोटर कार पे डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करना है, तो मोटर कार का यहाँ पे वैल्यू कितना दिया हुआ है, 32,000। 32,000 का 20% होता था 6,400, तो 6,400। उन्होंने क्या बोला है, मोटर कार से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है उसके 1/3 पर्सनल है और 2/3 प्रोफेशनल है। तो डेप्रिसिएशन का भी 1/3 डेप्रिसिएशन आपको कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लेना पड़ेगा और 2/3 जो है वो आपके एक्सपेंडिचर साइड आएगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर रहता था तो उसको भी 1/3 पर्सनल 2/3 प्रोफेशनल में डिवाइड करते थे।
यहाँ पे मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार इज 32,000. Motor car expenses we have taken, wages and salaries we have taken, rent of clinic is professional. Rent of clinic. Rent of clinic कितना पे किया आपने? 6,000. Then there is general charges 4,900. To general charges 4,900. Then there is household expenses, household furniture expense on daughter's marriage, personal expenditure, capital debit. Household expenses 18,000. That is nothing but drawings. To household furniture, ये भी आपके पर्सनल है, घर का फर्नीचर. अगर प्रोफेशनल फर्नीचर रहता था तो यहाँ आता था. हाउस होल्ड फर्नीचर 2,500. और उसके बाद एक्सपेंस ऑन डॉटर्स मैरिज, टू डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस, बराबर. डॉटर्स मैरिज एक्सपेंसेस आपने कितना खर्चा किया है डॉटर्स की शादी पे? डॉटर की शादी पे 21,500, बराबर. उसके बाद आगे क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन. आपने 4,500 रुपए का ब्याज दिया जो आपने यहाँ पे लोन दिया है. प्रोफेशनल एक्सपेंस. इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 पे 15%, 4,500, बराबर. उसके बाद बैलेंस एट बैंक एंड कैश इन हैंड. बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड. बैंक बैलेंस कितना है देखिए, 11,000 और कैश इन हैंड 1,000. That's it. We have posted each and every item. It's very simple, right? Now we'll calculate a surplus. तो क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? 93,400. और डेबिट का टोटल कितना हो रहा है? 8,000, 7,500, 15,000, 6,000, 4,900 and 4,500. ये डेबिट का टोटल है. 45,900. यानी there is a surplus. कितना? 47,500. This is what your surplus. We write here to surplus balancing figure. कितना है सरप्लस? 47,500. और टोटल कितना है? 93,400. 93,400. यहाँ पे सरप्लस कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में भी एडेड, बराबर. इट इज योर सरप्लस. तो आप क्या करते हैं? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करते हो. तो यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू ऐड बाय सरप्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम income and expenditure account, and here you write down to surplus transfer to capital account. बराबर. We are transferring it to capital account. तो यहाँ पे 47,500 I have transferred. Now see what is the balance. आपने 20,000 का कैश इंट्रोड्यूस किया था, 30,000 रुपए आपको पेंशन मिला, 47,500 आपके प्रैक्टिस से सरप्लस हुआ और इतना आपने खर्चा किया. तो बैलेंस कितना कैपिटल आपके प्रोफेशन के अंदर बचा है? 20,000 प्लस 30,000 प्लस 47,500. ये टोटल हो रहा है आपका
97,500 बराबर। क्रेडिट का टोटल है आपका 97,500 और डेबिट का टोटल क्या है देखिए 4,000, 3,000, 18,000, 2,500, 21,500। डेबिट का टोटल है आपका 49,000। तो बैलेंस कितना बचा है देखिए, बैलेंस इज 48,500। ये आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये आपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। कितना बैलेंस आ रहा है 48,500। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का टोटल। यहां पे लेंगे कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है 48,500। Now we will try to tally the balance sheet. लाइबिलिटीज का टोटल कितना आ रहा है आपका 78,500। देखते हैं एसेट का भी टोटल वही आ रहा है क्या 9,500, 25,000, 32,000, 11,000 और 1,000। That's it. Balance sheet is getting tallied. So this is all about problem number 16. Clear with that, right? इसके बाद we'll refer problem number 20. Before that, you just copy this. Please copy this. Now we'll start with problem number 20, the last problem. Refer your question sheet what they have given. The following information of Messrs TT Club are related for the year ended 31st March 2018. Now what they have given? Balances as on 1st April 17, that is an opening balances, and closing balances as on 31st March 18. Stock of sports material 75,000. At the start of the year you have 75,000. At the close of the year there was 1,12,500. Amount due for sports material, that means sundry creditors for sports material, is 67,500, and closing as on closing 97,500. यानी sundry creditors को पैसा देना बाकी था 67,500 और closing में 97,500. Opening में 67,500, closing में 97,500. Subscription receivable due outstanding 11,250 at the start, 16,500 at the end. Subscription received in advance 9,000 at the start, 5,250 in the end. Subscription received during the year 3,75,000, that is a receipt. Payment for sports material during the year 2,25,000, that means you have made a payment to sundry creditors 2,25,000. So they have given you opening creditors, closing creditors, and payment made to sundry creditors. So with the help of this, what you are going to calculate is purchase from the purchase of sports material. Now what they want us to do, you are required to ascertain the amount of subscription and sports material that will appear in income and expenditure account. Income and expenditure account में कितना amount आप show करेंगे sports material का और subscription का. तो we'll see this.
नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ये दो आइटम किस तरीके से आप बताओगे वो आपको पूछ रहा है. नाउ दिस इज माय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Income and expenditure account for the year ending 31st March 18. बराबर. So this is my income and expenditure account. This is expenditure. Income. Fine. Now second is also show how these items would appear in the balance sheet. Balance sheet में ये items किस तरीके से दिखेंगे वो भी आपको पूछ रहा है. Balance sheet as on 31st March 18. How you are going to show this in a balance sheet? It's very simple. We have done n number of times. Once again, it is a repetition. And one working note I am doing, that is working note. वर्किंग नोट किस बारे में? ये है कैलकुलेशन ऑफ परचेजेस. तो परचेज कैलकुलेट करने के लिए मुझे परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल का परचेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूँ और वो वर्किंग नोट क्या रहेंगी? सन्डी क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. Sundry creditors for sports material. I am preparing this account. Now see, first of all उन्होंने क्या दिया हुआ है? देखिए, सन्डी क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो है वहां पे आपके जो समरी फॉर्मेट दिया है उसमें दिया हुआ है. देखिए, अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, इट इज नथिंग बट अमाउंट ड्यू टू सन्डी क्रेडिटर्स. कितना पेमेंट देना है सन्डी क्रेडिटर्स को? ओपनिंग में 67,500. दैट इज by balance brought down. By balance brought down. कितना पैसा देना है सन्डी क्रेडिटर्स को? 67,500. और you take your dates so that it will be very easy to understand. Now what is the date? 1st April 17 को आपको इतना पैसा देना है और क्लोजिंग में कितना पैसा देना है वो बोल रहा है 97,500. 31st March 18 को टू बैलेंस कैरी डाउन कितना पैसा देना है? 97,500. 97,500 आपको क्लोजिंग में देना है. बराबर. और आपको एडजस्टमेंट नीचे पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला है? पेमेंट फॉर स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2,25,000. आपने सन्डी क्रेडिटर्स को 2.25 लाख रुपए पे किए 17-18 में.
टू कैश। कितना पे किया आपने? ये 97,500 और आपने पेमेंट कितना किया है? वो बोल रहा है 2,25,000। 2,25,000 का आपने पेमेंट किया है। ओपनिंग आपके पास 67,500 था, क्लोजिंग 97,500 और 2.25 लाख रुपए का पेमेंट आपने किया है। तो ये आपको क्या जनरेट करके देगा? 2017-18 में आपने कितना परचेज किया है, हाउ मच यू हैव परचेज, दैट इज अ बैलेंसिंग फिगर बाय परचेज, balancing figure. So how much you have purchased? 2,25,000 plus 97,500 minus 67,500 is 2,55,000 rupees का स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेज किया। 2,55,000, ठीक है। Opening, closing, payment, balancing figure, purchases. बराबर। This will help us to calculate sports material consumed under income and expenditure account. So what is the total you have? 3,22,500. 3,22,000. That's it, right? Now we'll come to income and expenditure account में किस तरीके से ये सब आइटम आपको शो करना है। तो सबसे पहले we'll go with subscription. By subscription, आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला कितना है करंट ईयर में? 3,75,000। पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो करंट ईयर में आपको रिसीव्ड हो गया होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पिछले साल का अमाउंट नहीं आएगा, यानी माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ 1670, यानी ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है? देखिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू 11,250, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग इज रिलेटेड विद करंट ईयर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्चुअल प्रिंसिपल पे जाता है, इसीलिए उसको ऐड करेंगे। हाउ मच? 16,500। उसी तरह सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था वो करंट ईयर से रहेगा, तो उसको ऐड करेंगे। एडवांस 16-17 में कितना मिला था? 9,000, और करंट ईयर में एडवांस मिला है, यानी वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड रहेगा, इसीलिए उसको माइनस करेंगे। तो आपका सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखेगा? कितना दिखेगा? 3,84,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना दिखेगा? 3,84,000, रिसीप्ट साइड 3,75,000। नाउ उसी तरह स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे लिखेंगे, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक समरी में दिया हुआ है, देखिए, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 75,000।
आपके पास 75,000 का स्टॉक था, आपने 2,55,000 का स्टॉक परचेज किया। वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है आपने वर्किंग नोट 1 में 2,55,000। और क्लोजिंग स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना दिया हुआ है, देखिए समरी में 1,12,500। इज इट करेक्ट? यस, 1,12,500। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में स्पोर्ट्स मटेरियल कितना दिखेगा, 75 प्लस 2,55,000 माइनस 1,12,500। तो ये कितना आएगा आपका 2,17,500। तो स्पोर्ट्स मटेरियल आपका कितना दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 2,17,500। नाउ सेकंड इज हाउ दिस आइटम विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। तो पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 18 को आउटस्टैंडिंग कितना है, 16,500, यानी रिसीवेबल यानी एसेट्स। सब्सक्रिप्शन ड्यू 16,500 बराबर 16,500 आपका क्लोजिंग है। और एडवांस में रिसीव हुआ है यानी वो आपकी लायबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 18 को एडवांस कितना आ गया था, 5,250 बराबर। स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक आपके पास क्लोजिंग कितना है, 1,12,500 बराबर 1,12,500 आपका एसेट। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,12,500 आपका एसेट बराबर। और उसके अलावा आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट देना है, इट इज योर लायबिलिटी। अमाउंट ड्यू फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल that is nothing but sundry creditors। कितना अमाउंट देना है आपको, 97,500। 5,250 एडवांस, 97,500 क्रेडिटर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 16,500, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,12,500। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू शो अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अंडर बैलेंस शीट। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आ गए तो इट इज आउट ऑफ मार्क्स प्रॉब्लम, फाइन। तो जस्ट कॉपी दिस एंड वी विल स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, फाइन। जस्ट कॉपी दिस, बाय एवरीवन।